अब हम चीन के खिलाफ जापान के रक्षा राज्य मंत्री की एक बहुत ही स्पेशल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको दिखाने वाले हैं। कल दुबई में वियोन का ग्लोबल समिट हुआ था, जिसमें जापान के रक्षा राज्य मंत्री ने कोविड-19 के बाद पूरी दुनिया में चीन के बढ़ते प्रभाव और चीन के बढ़ते खतरे को लेकर एक प्रेजेंटेशन दुनिया के सामने पेश की। इस समिट में उन्होंने चीन को लेकर जो नई नई और डराने वाली जानकारियां दी हैं, वो दुनिया भर की सरकारों की आंखें खोल देंगी। आज यहां से दो बातें सीखने वाली हैं। एक तो ये कि जापान के रक्षा राज्य मंत्री ने वियोन के समिट में जो बातें कही चीन को लेकर, वो अपने आप में बहुत बड़ी बातें हैं। दूसरी बात जो दुनिया भर के सब मंत्रियों को और सरकार चलाने वाले लोगों को देखनी चाहिए, वो ये कि जापान के रक्षा राज्य मंत्री ने कितनी मेहनत से ये प्रेजेंटेशन बनाई और एक प्रोफेशनल की तरह उन्होंने इस प्रेजेंटेशन को दुनिया के सामने पेश किया और एक एक पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से समझाया, उसका विश्लेषण किया, तस्वीरों के माध्यम से, ग्राफिक्स के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से। ऐसा आपने शायद किसी और मंत्री को किसी भी सरकार में वो रहा हो करते हुए नहीं देखा होगा। इसलिए हम वियोन ग्लोबल समिट के दौरान जापान के रक्षा राज्य मंत्री की ये प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर करना चाहते हैं और हम चाहेंगे कि दुनिया भर के सरकारें और मंत्री भी इसे देखें। COVID-19 changed everything, everything. This is COVID-19 for school, for go to school, they are wearing masks. Even the baseball players wearing masks and they're enjoying playing. So I want to say everybody can get next stage if you get vaccination and also be prepared for every time. You swallow, the gargle and wearing mask, wash your hands and alcohol. Yes. First, China. It's a very big issue. This is a document that you can see. The green and red. Green is the Japanese self-defense force budget. The red, Chinese PLA military budget. 1988, 2015. Now, green is the Japan budget, red is the Chinese budget. So they have a military budget 4 times bigger than Japan. So, and very rapidly, only 27 years, they increasing the budget. This is a map. This is the South China Sea. If the Chinese submarine launched JL-3 missile, this is JL-2, the former one. This is JL-3 missile, the newest one. So if Chinese submarine launch missile from South China Sea, you can see lots of man-made islands around here, made by China. But they launch missile once. They can shoot down the White House on east coast of the United States soil. Means this whole area can covered by the Chinese missile. So I live in Japan. I'm very much worried about this missile. So South China Sea. And next, Russia. This is Hokkaido, which is Japanese territory. This is northern territory of Japan. Hoppo-ryodo, we say. Using power, military power, to change the situation is not healthy. It's very, very unhealthy. Here is India. This is Japan. This is China, Russia. And this is free, open Indo-Pacific. Very important geopolitically, because all the package oil from Middle East through this region and coming up to Japan or to the Pacific Ocean.
free open Indo-Pacific is very key point of peace and stable of world politics and world order. So this is China, this is Japan. If the China, especially the naval power, if they want to go out to the Pacific Ocean, this is kind of like a protection line to the Pacific Ocean. So to destroy or invade this wall is a key for the naval activity. So how to hedge the risk of the war, World War III, is the theme of for the next generation. So today I would like you to think to hedge the risk of the war is to unite and make friend. तो जापान के रक्षा राज्य मंत्री चीन के बारे में पूरी दुनिया को आगाह कर रहे हैं और कह रहे हैं कि चीन के खिलाफ मिलकर काम करना पड़ेगा। ये उनकी प्रेजेंटेशन थी और बहुत तथ्यों के साथ, तस्वीरों के साथ, ग्राफिक्स के साथ, सैटेलाइट पिक्चर्स के साथ वो इस प्रेजेंटेशन को बनाकर लाए। जापान के रक्षा राज्य मंत्री की ये बातें उनकी चिंता को भी दर्शाती हैं और यही वजह है कि क्वाड देशों ने, क्वाड देश कौन से हैं? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान, इन्होंने मिलकर जो एक क्वाड बनाया है वो इसीलिए है कि ये सारे देश मिलकर काम कर सकें और चीन के खिलाफ भी एक बड़ा मंच तैयार कर सकें, एक बड़ा फ्रंट तैयार कर सकें। और इस क्वाड में जापान भी शामिल है भारत के साथ। कुछ दशकों में ही चीन का रक्षा बजट जापान और भारत की अपेक्षा कई गुना बढ़ गया है और हमें लगता है कि यह बहुत बड़े खतरे की घंटी है, क्योंकि चीन में भले ही अनाज का संकट खतरनाक रूप ले चुका है, लेकिन वहां हथियारों की कमी का कोई संकट नहीं। चीन ने ऐसे ऐसे मिसाइल्स बना लिए हैं जिनकी मारक क्षमता अब अमेरिका तक है और इंडो पैसिफिक रीजन में भी सैन्य शक्ति के दम पर चीन अपना दबाव अब बढ़ाना चाहता है और यही बात जापान के रक्षा राज्य मंत्री ने अपनी इस प्रेजेंटेशन में बताई है। तो ये प्रेजेंटेशन हमें बड़ी खास लगी। हमें लगा कि इस तरह की प्रेजेंटेशन सरकारों को भी बनानी चाहिए, मंत्रियों को बनानी चाहिए। और वियॉन एक प्राइवेट न्यूज़ चैनल है, अंतर्राष्ट्रीय चैनल है, लेकिन वियॉन भी एक बहुत बड़ा मंच है और उस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जापान जैसे देश का रक्षा राज्य मंत्री का आना और चीन के खिलाफ इस तरह का एक प्रेजेंटेशन देना, यह भी अपने आप में एक नई शुरुआत है, जहां पर वियॉन जैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल्स भी दुनिया की डिप्लोमेसी में और दुनिया भर की राजनीति में एक बहुत बड़ा मंच बन सकते हैं और बहुत बड़ी भूमिका भी निभा सकते हैं।